السلام علیکم. عرفان عباسی, فوکل پرسن, محلہ لیاباد, سروس روڈ, صادقآباد. السلام علیکم. ذیشان خان, خان ڈسکاؤنٹ اسٹور, فوکل پرسن, فاروق اعظم روڈ. بچت روڈ, صدر بازار, ایم حسین روڈ, صدر. السلام علیکم. محمد انور, فوکل پرسن, امرپورہ, چار سلطان. السلام علیکم. اسلام نورج, تازہ گلیئر روڈ. السلام علیکم. راجہ آصف, فوکل پرسن, گرجا روڈ. السلام علیکم. شاہد خان, چوچو سے, فوکل پرسن, ماشاء اللہ, کریانہ. زاہد خان, ڈوب کالا خان سے. فوکل پرسن, ڈیفینس روڈ. السلام علیکم. جعفر علی, نیو افضل ٹاؤن, فوکل پرسن. السلام علیکم. طاہر شاہ, کار چوک, اسکیم 3, فوکل پرسن. السلام علیکم. شیخ حسن, پی ڈبلیو ڈی. السلام علیکم. فوکل پرسن, پیپل کالونی, ذوالفقار. راجہ بابر, پریزیڈنٹ انجمن تاجران, ٹنچ پاٹا. السلام علیکم. اشتیاق میر, چیئرمین کریانہ اسٹیشن, سیدپور روڈ, پنڈورا بازار. السلام علیکم جی. ظہیر عباس, فیبانہ سفید. سلیم پرویز بھاٹری, صدر مرکزی کریانہ ایسوسیشن راولپنڈی اور سرپرست اعلیٰ مرکزی کریانہ ٹیلر پنجاب کا. شیخ محمد بخش, صدر جنوب تاجران, سفید چوک, فوکل پرسن, بمبار. السلام علیکم جی. مرزا محمد ضمیر, پنڈورا روڈ, مبارک لین نمبر 4 سے, فوکل پرسن. ملک احمد اوان, انجمن تاجران ڈوبچا, ان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور فوکل پرسن. السلام علیکم. مرزا حسن, فوکل پرسن, جہانگیر روڈ. السلام علیکم. ملک رمید احمد, کچا اسٹاف 3. السلام علیکم. شان جنرل اسٹور, نئی چاکرا روڈ, راولپنڈی. حکیم شیخ خالد, مین بازار, ٹیڈیس نمبر, راولپنڈی کینٹ, صدر اور فوکل پرسن. شیخ عامر, فوکل پرسن, سیدپور روڈ. السلام علیکم. رائے شہزاد, فوکل پرسن, ڈوک سیگا. السلام علیکم. فاروق نسیم قادری, صادقآباد, قادری کریانہ ڈیلر. صدر کریانہ ایسوسیشن راولپنڈی. السلام علیکم. فوکل پرسن یاسین ملک, ریلوے اسکیم, مروان, چکرانا. فوکل پرسن, حمزہ شاہ خالد, کالونی. مرکزی انجمن تاجران پنگا شوا بدر کالونی, پیر ودائی. جنرل سیکرٹری تاجر یونین, فوکل پرسن, ملک یعقوب, المعروف لال. السلام علیکم. شاہد خان, فوکل پرسن, پرانا چاکرا, ڈوکرم آباد. السلام علیکم. ایس ایم ادریس, سب چوک, حسین جنرل اسٹور. جی السلام علیکم. بدرہ منیر, اسلم مرکزی ٹراول, پی ڈی کینٹ, فوکل پرسن, شیوات. ملک تاجران, چوچو. محمد ضمیر سر, اولاباد, کیا نہیں ہوتا. جی السلام علیکم. فراد عباسی, وکاس کو اسٹور, ڈوگلانس. جی فیاض حبیب, فوکل پرسن, بینک کالونی, دمیار روڈ. محمد علی, برف خانہ چوک. ہڑتال میں شامل نہیں ہوا تھا. اس نے وہ ہمارے طور صاحبوں نے 900 توڑا اس کو دیا تھا. 900 توڑا لے کے اس نے ہماری ہڑتال ناکام بنانے کی کوشش کی. مجھے فون آئے 2 فوکل پرسن کے, ہم تو مبارکباد دے رہے تھے سب کو کہ بھی ہماری ہڑتال کا, انہوں نے کہا جی ایک جگہ پہ آٹا پڑا ہے. پھر اس سے بات کی, کہتا ہے کہ میں انتظامیہ کے ساتھ, میں نے کہا آپ کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہڑتال کریں گی, نہیں جی میں نہیں کروں گا. پر مجبوراً میں مجھے وہ ہڑتال کھولنی پڑی. پھر دوسری دفعہ ہوا, پھر اس نے یہی کام کیا. وہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا وہ ایجنٹ بن کے جو کام, پھر میں نے انتظامیہ کے خلاف میسج کیا. جب ہمارے سارے فوکل پرسن گئے تھے, میں نے کہا جی انتظامیہ دباؤ میں آئی ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. میرا یہ میسج اس نے وہاں انتظامیہ کو بھیجا. پھر میں نے انتظامیہ کے خلاف میسج کیا, پھر اس نے بھیجا. پھر اس نے انتظامیہ کو میسج بھیجا جب تیسری دفعہ میں نے اٹھایا کہ ہم آٹا نہیں بیچیں گے. میں نے آپ سب سے مشورہ کیا تھا کہ ہم یہ آٹا بیچے کہ نہ بیچے. سارے بندے گواہ ہیں کہ سب نے کہا تھا کہ نہیں یہ آٹا نہیں بیچیں گے. اس نے انتظامیہ کو میسج بھیجا کہ جناب میں بیچنے کے لیے تیار ہوں.
तीसरी दफा इसने ये किया। अभी फिर ये मैंने आपको पहले 15 दिन पहले कहा था कि एक बंदा गद्दारी कर रहा है, मैंने उसका नाम नहीं लिया था, मैं कहा बंदा गद्दारी कर रहा है जरा, सब समझ गए थे, सबको पता था कि ये बंदा है। इससे जो है ना उसने फोकल अपने जो एडमिन बनाए वो खुद ही एडमिन बना दिए। हमारे ये सफीर साहब है, इनको एडमिन बनाया, तो इन्होंने उसको फोन करके लेफ्ट किया, फिर उसको फ़ोन कर दिया कि जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, लगा बुजुर्गों के पहले इज्जत करना सीखो। इस तरह वो टेंट बाटा वाले उन्होंने लेफ्ट किया, पर वो कहते हैं हमें पता नहीं, आप सोए हुए घर में उसने हमें एडमिन बनाया। वो सारा जाली काम हो रहा है। हमारा अल्लाह का फजल है कि 100% हाजिर है, जितने फोकल पर्सन थे सारे हाजिर हैं। काजी साहब थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपना बेटा भेजा, रात को उनका मैसेज आया था कि मैं आऊँगा, मैंने इसको मैं मना किया, उनको ना लाए, उनको छोटे लगे नहीं, तो इसलिए उनको ना लाए। तो ऐसे आदमी साहब हमें होशियार रहने। अब आपने जवाब भी देना उस चीज़ का, उसको पता चले कि ये सारे इकट्ठे हैं। ये आपकी वीडियो बन के इंतजामिया का पास जाएगी, उनको पता चलेगा कि ये क्या है। सर मैं अगर बात शुरू हुई है, आप पहले बार तलावत कर लें, हफ्ता ताकि आप शुरू कर लें। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم सब आके खाके यती का इदार था। बहुत शुक्रिया जी। तो बात ये है कि तमाम दोस्त बुजुर्ग जो है ना, पीर वदाई बंगश का लूंगी का ताजर यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये आटे का जो सिलसिला महीना 2 महीने 3 महीने जो चला है, इससे पहले जो है ना मेरा जो शुबा था वो एक ताजर यूनियन या प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से था। मेरे दोस्त ने सदाम अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि परवेज भट्ट का जो चलान हुआ है, ठीक है, वो अपना चलान तो नहीं छुड़ा सकता, दुकानदारों के क्या चलान छुड़ाएगा। हालिया मजिस्ट्रेट अव्वल जो है आई नैन थाने के साथ उसका दफ्तर है, मेरे पास उसकी 6 रसीदें मौजूद हैं जो मेरे दुकानदारों के ऊपर चलान करके गया था। नुमाइंदगी वैसे जो है ना मेरा जो सिस्टम है शजीर मीर के साथ है, ठीक है, उसी के पैनल का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। भट्ट साहब ने मुझे उस इलाके का फोकल पर्सन बनाया है। किराने की जो है ना वहाँ पे मैं जो मामला देख रहा हूँ, हालिया 3 दिन पहले से जो है ना वो चलान हुए हैं 6 दुकानदारों के। मजिस्ट्रेट अव्वल ने कहा जी कि 15,000 रुपया फी बंदे का मैं जुर्माना करूँगा, ठीक है, उससे कम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी उसके साथ अच्छी खासी जो ना बहस होने के बावजूद उसको मैंने कहा जी आप भट्ट साहब से रब्ता करें, अगर नहीं तो मैं आपको कॉल पे बात करवा दूँ। मैंने फ़ोन किया है भट्ट साहब को और उसने बात की है। भट्ट साहब ने कहा यार कैसे करो यार कि ये हमारा फोकल पर्सन भी है और साथ जो है ना एक यूनियन का सिस्टम है इसका, आप 3,000 रुपये जुर्माना करो। उसने कहा भट्ट साहब मैंने तो इधर जो है ना ओके कर दिया 15,000 रुपये का, ठीक है। तो भट्ट साहब ने कहा जी जो भी है ना जिस तरह भी है इसको आप जो है ना ख़त्म करें या जिस तरह भी है इसको आप कम करें आप। उसने 5,000 रुपये जुर्माना किया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक मजिस्ट्रेट अगर 15,000 रुपये जुर्माने की रसीद अगर लिख देता है तो भट्ट साहब ने उसको कॉल पे कहा यार कि इसको 3,000 रुपये या 4,000 रुपये करो, ठीक है। उसने बहुत मस्ती वो करके 15,000 से उसने 5,000 रुपये कर दिया। तो वो मेरा जो दोस्त है वो कहता है जी कि ये आपने चलान नहीं छुड़ा सकते हैं या इस तरह उस तरह। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल मुनाफिकत वाली हैं और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सबसे पहले दूसरी बात ये है कि हम जितने भी यहाँ पे फोकल पर्सन बैठे हैं इनमें से बकौल ये हमारे ज़हीर भाई बैठे हैं जो इसके सारे सिस्टम को देख रहे हैं। 5 बंदे हैं जो फोकल पर्सन है, उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक जनाब जूलर है, एक हकीम है और एक बंदा और है। ये 5 बंदे हैं और 5 बंदों के अलावा वही ड्यूटी आप लोग भी कर रहे हैं, जितने भी फोकल पर्सन हैं आप लोग भी वही ड्यूटी कर रहे हैं और वो भी जो 5 बंदे हैं वही ड्यूटी कर रहे हैं।
और उन 5 बंदों को उसने बाकायदा ग्रुप में मैसेज करके ये कहा जी कि भट्ट साहब की सबसे बड़ी जो नैली है या जो भी कहें वो ये है कि इन्होंने जनाब एक चूड़ा मुसल्ली नाई को जो है ना फोकल पर्सन बना दी है। ठीक है, जिसको जो है ना आटे का इल्म ही नहीं है या किराने का इल्म ही नहीं है तो उसको इसने फोकल पर्सन बना दिया। तो मैं सबसे पहले जो है ना, ये आप जितनी भी दोस्त अब आप बैठे हैं, ठीक है, मेरा आज का जो है ना मीटिंग में आने का मकसद ही यही था कि भाई उस शख्स ने अगर उन 4 बंदों या 5 बंदों को नाई मोची बनाया तो इसके बारे में आप लोग क्या फैसला करते हैं? मजम्मत करते हैं जी, हम शिद्दत से मजम्मत करते हैं सब लोग इस चीज़ की कि किसी को भी हक नहीं है किसी को बुरा भला कहने का। मतलब नाई मोची धोती बना के तो ये अच्छी बात नहीं है, तो उसको इज्जत करनी नहीं है। हालांकि वो मेरे बच्चों से भी छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है। इसीलिए वो सफीर ने भी उसे कहा था कि बुजुर्गों की इज्जत, इसको भी उन्होंने एडवर्ब बनाया। अच्छा, एक और चीज़ है मादरत से, भट्ट साहब ये हमारे आजी सैफुल्लाह साहब हैं जो ताजर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं मेन रोड पीरवदाई के। ये हमारे मस्जिद इमाम हैं लोहारों की गली के। ठीक है, एक मस्जिद के इमाम है हाजिर मौजूदा, मस्जिद में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, तरावियाँ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों का सपारा भी पढ़ा रहे हैं। आजी सैफुल्लाह साहब ने इनकी डिप्टी लगाई है फोकल पर्सन की, और भट्ट साहब ने कहा कि मस्जिद में ठीक है जी आप इनको दें। अब ये एक नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी मुझे ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे भी बीच में रगड़ दिया है, तो इसलिए मैंने दोबारा ये रिपीट किया कि ये हमारे एक उलमा इकराम है, इनको भी साथ उसने जो है ना मुझसे वो हमारी क्या क़यादत करेगा या हमारी नुमाइंदगी क्या करेगा, चाहे कोई भी है। बस इमाम मस्जिद है, ये हमारा आटा तकसीम करते थे, तो वो बस उसने लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किया। वो अपने आप को बचा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैंने बुजुर्गों की इज्जत कैसे करनी है। जो मुंह में आता है वो निकालता है। आटे चीनी पे उसका पर्चा कट चुका है, जब चीनी की तकसीम हुई थी चीनी पे उसका पर्चा कटा हुआ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि जो चीनी पे हेरा फेरी की थी। मैं कहता हूँ कुरान पे हाथ रख दे, कोई बंदा एक भी कह दे कि मेरे से किसी ने 1 तोड़ा भी हिस्सा लिया है, मैंने दे दिया है, सबको उससे दिया है, मोहर लगाता रहूँ। बल्कि उस वक्त कोरोना था और मैं कोरोना का अस्पताल भी दाखिल हुआ, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी की है। इंतज़ामिया मेरे से खुश है। इंतज़ामिया मैंने 2-3 दफ़ा आकर जाके उनको वापस किया है। उन्हें कहने जी हम आपके साथ। मैडम ने भी उस दिन जो फ़ोन किया उसने कह दी हम आपको बगैर चल नहीं सकते, हम उनको बगैर पैसे के मिले हुए जिस वक्त उनका वो काम होता है। आज ये तजावज़ात की मीटिंग थी, मुझे रात को 9 बजे फ़ोन आया कि भट्ट साहब इनको इकट्ठा करें। आज वो सारे बंदे हाजिर थे, उनको पता है कि ये बंदा इकट्ठा कर सकता है। जी बात करें, जो है बात करें, कोई है मसला ये उनका प्रेसिडेंट है, उनके इलाके चौक का मेरा सेक्रेटरी है सदाम, मैंने बनाया है तकरीबन 2-3 माह पहले। अपना जो हमारा सेक्रेटरी था उसे रद्द करके हमने इसे चूज़ किया था सेक्रेटरी के लिए। लेकिन ये है कि भट्ट साहब से हमारे तकरीबन 12-14 साल से तल्लुकात है बड़े अच्छे। ये आटा तो अभी आया है, काफ़ी पहले से मैं भट्ट साहब को देखता आया हूँ। हमेशा जब भी इन्हें देखा है प्राइस कंट्रोल मीटिंग में जितने भी किराना के और पिंडी के दुकानदार हैं उनके लिए फ़ाइट करते हुए देखा है और रियल रेट जो है ना मैनेज करते हुए देखा है इन्हें, तो हम इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत पुराने से तलक था। अब ये जब बात बनी है आपस में सदाम की मसला बना है, तो उसने मुझे बहुत कहा कि आप मेरे प्रेसिडेंट हैं बाजार के, मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरे साथ स्टैंड लें। मैंने कहा स्टैंड मैं लूँगा आपके साथ। जो भट्ट साहब का जो शख्सियत है वो बिल्कुल बेदाग शख्सियत है, ठीक है जी, और इनके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। बाकी बात रहे कि फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का काम होता है सिर्फ आटा वहाँ से आएगा, उसने सप्लाई देनी है। अब उसमें उसके दालों के या चावलों के रेट होना ज़रूरी नहीं है, उसके किराने का होना ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी जो मेरे से पहले वहाँ पर फोकल पर्सन दे रहा था वो किराने वाला था। वो सिर्फ पूरे रेमबाग में से 2 दुकानों पे आटा जाता था, 20-20, बाकी सारा आटा गायब होता था। तो जब मैंने आटे की सप्लाई भट्ट साहब मुझे कहा कि आप अपनी कस्टडी में ले लें, तो मैंने जब अपनी कस्टडी में सप्लाई ली है तो फिर वीडियो सबके आए हैं, रेमबाग के नीचे जितने दुकानदार हैं उनका है कि आटा में सबको मिल रहा है और अच्छे मकदार में मिल रहा है। तो बाकी ये है कि भट्ट साहब के लेवल में उसमें कोई जो है ना वो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। इन्होंने इनका एक कैरियर है, एक रिकॉर्ड है इनका। इंतज़ामिया से भी जब ये करते हैं ना बातचीत, तो ये आपकी नुमाइंदगी करते हैं, ना कि इंतज़ामिया की चापलूसी करें। बात ये कि जब भी कोई तंजीम बनती है, यूनियन बनती है, उसका एक मकसद होता है। मकसद सबसे अहम मकसद ये होता है कि इंतज़ामिया के नाजायज़ फैसलों के खिलाफ खड़ा होना। अगर आपने उनके फैसलों के खिलाफ खड़ा ही होना, उनके अगर दो मिलानी है या उन्हीं की हर बात माननी है, तो फिर यूनियन का या फिर लीड करने का मकसद क्या हुआ? दुकानदार का तहफ़्फ़ुज़ है और वो भट्ट साहब दे रहे हैं जो है ना वो फ़ायदा नहीं उठा सकते इंतज़ामिया वाले। शुक्रिया। मेरे मोहतरम भाई, आजकल इसका दौर है, कोई भी बात करेंगे, अच्छी करेंगे, बुरी करेंगे, किसी की मुखालफत करेंगे, किसी की हमायत करेंगे,
रिकॉर्डिंग होती है, जेब में रख के रिकॉर्डिंग होती है, हर जगह रिकॉर्डिंग। हम अकेले थे। ये मैं आज का सफ़र आपसे नहीं गुजारिश कर रहा। सलीम परवेज़ भट्ट साहब के उस वक्त सारे बाल काले और मेरी नई नई मूछें आ रही। हमारा उस वक्त का साथ है। आप लोगों को शायद ये मेरे मोहतरम बुजुर्ग बैठे हैं, शायद इनको याद होगा, यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर चौधरी नज़ीर अहमद साहब आए थे। उसके बाद AZK शेरदिल आए और मेरे वालिद साहब ने मलक अमीर मोहम्मद ख़ान की तरह मूछें रखी हुई थी और चौधरी नज़ीर अहमद की भी मूछें। वो एक मुमासलत के तौर पर एक हमारा एक रिश्ता, एक तल्लक बन गया। 28, 29, 30 साल से भट्ट साहब भी हैं, मैं भी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हाजी साहिब रहीम साहब को, दुनिया से चले गए। हमारा एक बड़ा मजबूत साथ था और वहाँ हाउस में बैठ के, DC ऑफिस के हाउस में बैठ के, अगर कोई बात मैंने की है, ताजरों के मुताल्लिक़ कोई बात मैंने की है, तो भट्ट साहब ने मेरी हिमायत की है, शेख सदीक साहब ने मेरी हिमायत की है। मामले को समझना, असल बात यह है कि अपना नुक्ता नज़र किसी अफसर तक पहुँचाना और अपनी बात को उसके दिल में बिठाना ताकि हमारी बात को वो अच्छे तरीके से समझ जाए, और जब अफसर कोई भी होगा वो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ जाएगा तो आप ताल निकल आएंगे। बात को समझाना सबसे पहला एक कुलिया है। दूसरा इसमें बात यह है कि अगर हम अकेले होंगे तो हमें एक एक तिनके की तरह तोड़ दिया जाएगा। आज हम यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं तो हम एक मजबूत हैं, हमारा एक इत्तेहाद है। जब सलीम परवेज़ भट्ट साहब जाएंगे, मैं जाऊंगा, आप में से कोई बंदा जाएगा और आपकी कमर के पीछे 20, 25, 50 आदमी खड़ा होगा। किसी भी अफसर के पास आप जाएंगे, उसको पीछे 50 आदमी नजर आएगा तो उसको पता लगेगा ये कोई बंदा आया, इसके पीछे कुछ सपोर्ट है। ना सलीम परवेज़ भट्ट कभी हमसे अलग हुए, ना हम कभी इनसे अलग हुए। मुझे एतराज़ इस बात पे हुआ है कि किसी की ज़ात को नहीं गिनना, उसके किरदार को देखो यार, वो कर क्या रहा है। एक नेचुरल बात है, कोई भी बंदा, मैं हूं, मुझे चॉइस है कि जिस माँ के पेट में मैंने 9 महीने गुजारे हैं, यहां कोई बंदा मुझे बता दे कि वो चॉइस है अपना, माँ के पेट का चॉइस है, प्लेस ऑफ बर्थ का चॉइस है, डेट ऑफ बर्थ का चॉइस है। ये सब अल्लाह के एक निज़ाम है। मैं गुजर फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मेरे रब ने गुजर फैमिली में पैदा कर दिया, मलकों में क्यों नहीं किया, राजों में क्यों नहीं किया। मैं हाथ रख सकता हूँ उस वक्त किसी को नाई धोबी मोची कहना, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें इंसान के जो अपना ज़मीर होता है ना, जो उसका किरदार होता है, वो सामने आ जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटियाँ खुद काटी थी, अपने काम सारे खुद किए थे। और इताअत की एक बात मैं आपको बता दूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, अल्लाह ताला सब कुछ जज़ाए खैर दे, अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह किसी का मोहताज हम सबको ना करे। पिछले दिनों को 2 महीने 3 महीने की बात है, चौधरी कमर साहब आए लालपुरती में। हम लोग अल्लाह ताला भट्ट साहब के बच्चों को ज़िंदगी दे, इनका साथ दिया। मेरे बच्चे जॉब में चले गए, अब वो 18, 19, 20 ग्रेड में चले गए हैं। अब वो मेरे साथ पाँव को दाल तो नहीं तोड़ते। उस वक्त शौक से पढ़ाता रहा। अब वो अपनी जगह पर सेटल हो गए। हम दुकान के अंदर बैठे हुए, हमें ये नहीं पता होता दाएं बाएं दुकानों में क्या होता है। अपनी दुकानदारी से गरज होती। वो मेरे बाजार के 22 दुकानदार चलान करके चला, मेरी दुकान पे आया भी है, इस्लाम तो वही खड़ा हुआ है। आज भी इसी तरह हुआ, आज भी मैंने अपना बाजार सारा छुड़ा दिया, एक चलान नहीं है मेरे बाजार का, और चुप करके वापस चला गया। 22 पुलिस सारे नोटो स्टार में, मैं तो भाई मैं वादा नहीं करता, मेरे पीछे खड़े हो गए तो बात बढ़ेगी। सुबह गए, अल्लाह ताला जिंदगी दे, डीसी साहब थे, कैप्टन शुएब साहब,
बड़े अच्छे मुलाजिम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाइयों जैसे कर एक ही रिक्वेस्ट की कि सारी सब देखना इनके साथ ज्यादती की। जब उसने यूं देखा है ना कि इसके पीछे 40-50 आदमी खड़े हुए हैं तो वो भी मजबूर हो गया मेरी बात मानने पे। मैं इतना ताकतवर नहीं था, ना मेरी शक्ल इतनी सोहनी है कि मैंने तक के उसने कहा यार इन्होंने छोड़ दो ना। उसने देखा इसके पीछे 50 दुकानदार खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। परवेज भट्ट की ताकत इसलिए होगी कि हम 100 बंदा इसके पीछे खड़े हुए। मेरी ताकत इसलिए होगी कि मेरे पीछे परवेज भट्ट खड़ा हुआ है। आपकी ताकत इसलिए होगी कि आप एक मजबूत और मरबूत एक यूनियन से तल्लक रखते हैं। ये हमारा एक हाउस है। इन्होंने भट्ट साहब ने अभी सदाम वासी की बात की है, ठीक है, मेरे पास उसके मैसेज आए, रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा भी समझाया कि मेरे भाई छोटों से शफकत करो, बड़ों की इज्जत करना सीखो, कोई किसी से अलग नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मुझे लगभग ये कल की तारीख है, ये कल मैसेज आए हैं मुझे, कल या परसों रात को आए। अब यहाँ पर मैंने उसको जवाब दिया है। मेरे भाई उस दिन मैंने एक मैसेज किया था, वो पॉजिटिव मैसेज था। मैंने सब भाइयों से, दोस्तों से ये कहा था कि कोई बंदा, कोई भी बंदा, मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म और कोई भी बंदा अकेला होकर नहीं चल सकता। इसी तरीके से किसी यूनियन का सदर, जनरल सेक्रेटरी कुछ भी नहीं होता जब तक उसके साथ 4 बात ना हो। ये एक पॉजिटिव मैसेज था। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि परवेज भट्ट और आपके दरमियान कोई रस्साकशी हो रही है। परवेज भट्ट से मेरे 40 साल के पुराने ताल्लुकात हैं, भाई है हमारा, और वो भी करियाने वालों के लिए लड़ता रहता है। जिस तरह मैं लड़ता रहता हूँ वो भी लड़ता रहता है। वो सिटी को डील करता है, हम पेंट को डील करते हैं। सुल्तान साहब आप भी मेरे भाई हैं, आपके ग्रुप वाले भी सारे हमारे भाई हैं। मैंने ये मैसेज सुने हैं, वॉइसेज सुनी है, मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा कि आपको परवेज भट्ट नीचा दिखाने की कोशिश करें और आप परवेज भट्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करें। मेरे भाई इसमें हम सब का नुकसान होगा, अकेले परवेज भट्ट का या सदाम वासी का नुकसान नहीं होगा, इसमें हम सब का, पूरी करियाना यूनियन का नुकसान होगा। ये रस्साकशी को आप छोड़ दें, आप हमारे भाई हैं। और मैंने आज तक किसी के जो है ना नाराजगी पैदा नहीं की। आप भी आपस में सुलह सफाई से काम लें। आप भी, परवेज भट्ट भी, सब हमारे भाई हैं। हमने मिलकर चलना है, हमने करियाने के लिए काम करना है। क्यों दरमियान में अगर हमारे 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े हो गए, कल को टेंट पार्टी वाले कहें कि हम अलग हैं, लालकुटी वाला मैं कहूँ मैं अलग हूँ, डेरी इस्लामाबाद वाले कहें मैं अलग हूँ, लोग चलाती ब्रीड वाले कहें हम अलग हैं, वो अल्लाह के बंदो अलग अलग हो गए तो ये हमें तिनकों की तरह तोड़ देंगे सब। हम इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत होगी, मजबूती होगी। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि ये जो मेरी तरफ आया, वहाँ मीटिंग में मुलाकात हुई है 2-4 दफ़ा, उसका फ़ोन हो गया है। ये दरमियान में जो हो रहा था मामला, मुझे उससे इल्म नहीं था, ना भट्ट साहब ने कभी मुझसे बात की। ये हमेशा मुझे छोटा भाई समझ के बड़ी शफकत करते हैं, इन्होंने कभी बात नहीं की। लेकिन उसके रिएक्शन में उसने मुझे कहा कि मैंने आपको इज्जत दी है, मैंने आपको एडमन बनाया, मैंने फिल्म बनाया। मैं क्या भाई मैं बखेड़ों में नहीं पड़ता, जो काम आप कर रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर लिया, मेरी मर्जी है, मेरा हाथ पर निकाल। अरसा दराज से ये भट्ट साहब को जाके एज ए बाजार का प्रेसिडेंट होने के नाते सिर्फ आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं रहेंगे। अभी इन्होंने जिक्र किया ना आरडी के, मेरे मैसेज आते हैं, कई बंदे ऐसे भी हैं जो जिनकी अपनी ज़ाती दुकानें हैं, आपके टैक्स के मसाइल होंगे और बड़े सारे मसाइल हैं ना, सिर्फ चीनी आटे का नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। जो भी बंदा खिदमत करता है ना जी, इस हस्ती के साथ में अरसा दराज से मुंसलिक, मैं उसके बारे में कहना ही नहीं चाहता। ये जो आज बंदे इकट्ठे हो गए ना, जो चंद बंदों के बारे में उस बंदे ने बात की है, वो उसकी तबीयत का पता चल गया आपको।
یہ میرے بھائی نے بات کی ہے کہ میرے جنرل سیکرٹری ہیں وہاں کے. پہلی بات ہے جو بندہ اس لائق ہی نہیں ہے اسے اس منصب پہ بٹھانا مقصد ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا, دوسری مرتبہ کر بیٹھا ہے. میں نے تو نہیں اسے دیکھا اگر کسی کے ساتھ میٹنگوں میں جا کے ایک راستہ بنایا اس نے تو اپنی ورث بتایا کہ اس نے کریانہ کے لیے کیا کام کیا. بجائے توڑ پھوڑ کرنا, گروپوں میں ایک الگ گروپ بنا کے ان کو تقسیم کرنا, یہ میرا خیال زیب نہیں دیتا. ہم اسے اتنا ڈسکس نہیں کرتے ہیں. آپ سب بھائی آئے ہیں نا, اظہار یکجہتی, بڑھ صاحب کی عزت, اللہ جسے عزت دے نا دوسرا بندہ کوئی زیر نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا صرف یہ نہیں مقصد ہے, ہر بندے کا اپنی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے, مقصد ہے خدمت کرنا. ظہیر بھائی مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, بڑھ صاحب بہت سارے کام کروائے ہیں لوگوں کے. میں کینٹ سے بتا ہوں, اصل مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا. بڑھ صاحب اس ایج میں میری پرسنل ان سے بات ہوئی ہے, یقین کریں میں داد دیتا ہوں ان کو, اس ایج میں یہ وائس میسج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھیں روزے میں جو بندہ اس ایج میں خود اپنی, میرے بچے جوان ہیں جی ماشاءاللہ, مجھے فیملی کہتی ہے آپ کیا سارا دن میسج کرتے رہتے ہو. میں نے ان سے بھی یہی بات کی, انہوں نے کہا میرے گھر والے ناراض ہو گئے ہیں. یار انسان کی اپنی بھی لائف ہے. ایک بندہ 60-70 سال کی ایج میں آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اور آپ کے اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہو یار گروپوں میں, شیم فار یو. اس بندے کو مقصد ہے کہ جو اپنی صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا, وہ کریانہ مرچنٹ کے لیے نہیں سوچ رہا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ اپنی ذات کے لیے صرف سوچ رہا, صرف اپنے عہدے کے لیے سوچ رہا ہے. عہدے ایسے نہیں ملتے برادر, اس لیے رب دیتا ہے. جب آپ کسی کے لیے خدمت کے لیے نکلو گے نا, رب آپ کو عزت دے گا. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے صرف کریانہ کے لیے کام نہیں کیا. شرجیل صاحب, فاروق پراچا صاحب, ان سے میرے بڑے اچھے تعلق واسطہ ہے. یہ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, بڑا اچھا شعر ہے کہ محبت کا پودا جو ہے نا وہ زمین میں نہیں ہوتا, دلوں میں ہوتا ہے. یہ بٹ صاحب نے وہ پودا لگایا جو آپ آج اٹھے ہوئے ہیں. سمجھئے نا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سب دوستوں سے مل کے بھی. آج ہم اس ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, بٹ صاحب سے اظہاری یکجہتی کی ہے. میرا خیال ہے کوئی دو راہ نہیں ہے, کوئی دوست کو وہ مقصد ایڈ کرے, نکالے, ایک شخصیت پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائے. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. جہاں تک کہ ابھی ہم چلے ذاتے تو چھوڑے نہ جی, سب سے بڑی وہ ہمارے حافظ ہے, وہ بھی بھائی نے بات کی. باقی اگر دنیاوی صاحب سے جاتا نا, اسے میرا بتائیے گا, میں جمیالہ اس سے تعلق رکھتا ہوں, میں راجہ برادری سے تعلق رکھتا ہوں. ہم اس بات پہ آئے نا, ہر طرح کے صاحب لے لیں, لیکن اس بندے کو کیا اہمیت دینی جس میں کوئی ظرف ہی نہ ہو. اپنے باپ کی عمر کا اس کے ساتھ تیرے ساتھ اس نے کتنی نیکیاں کی ہوں, اور اس طرح کی حرکتیں کر کے تو کیا کمانا چاہ رہا. ہمیں تو وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا تھا. آج بڑھ صاحب ہمیں یہاں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جی. انشاءاللہ ٹینچ کا جو جتنے بھی دکاندار ہیں, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے ایڈ کیے اور ان کو لا علمی تھی, انہوں نے ثابت کیا. یہ سب بھائیوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج سب کو رمضان مبارک جی, رمضان کی برکت گھڑیاں جی. آج آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, بہت شکریہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ انما المؤمنون اخوہ. اس بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں, تو آگے کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا تھا. تو اس معشوقہ نے اس عاشق کو کہا کہ اس کو تھوڑا چھیڑ. اس نے اس کو چھیڑ دیا. جیسے یہ معشوقہ آگے گئی, اس کے عاشق کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں گے. تو وہ معشوقہ اس بابے کے پاس آگے کہتی ہے, بابا معاف کرنا, آپ نے کیا بد دعا دی ہے؟ کہتا ہے پتر میں کوئی بد دعا نہیں دیتی, معاملہ اے ہویا ہے کہ تیرے یار نے منو چھیڑیا تے میرے یار کو برداشت نہیں ہوئی, اس نے چھیڑ دیتا. بھائی میرا حالانکہ یقین ہے, میرا خود دارالفتاح میں ہوتا ہوں, فتاوے آتے ہیں. اس وقت میں مسجد بند کر کے آیا, تراویح پڑھائی, نماز پڑھائی, لیکن بٹ صاحب کا میسیج آیا تھا تو میں نے کہا کسی طریقے سے بھی حاضری ضرور لگاؤں. حالانکہ میری کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے, میں اسکول میں صبح ٹیچنگ کرتا ہوں, اس کے بعد بنات کے مدرسے میں 2 پیریڈ ہیں, پھر مسجد کے حوالے سے اتنے انتظامات ہیں. اس کے باوجود بھی
अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आती रोज़ाना हमारे पास। कभी भी भट्ट साहब ने ये नहीं पूछा कि आपके पास गाड़ी आती है आप क्या करते हैं उसका। यानी इन्होंने जितने बंदे आप समेत जो मुकर्रर किए हैं उनके ऊपर अपने से ज़ायद यानी अपने से भी ज़्यादा एतमाद करके आप पे इन्होंने भरोसा किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, असल वो भी हमारे भाई हैं। हदीस में आता है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है कि जो किसी के हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। तो ज़ुबान से तकलीफ़ दी, हाथ से तो नहीं दे सका। बहरहाल हम अपनी तरफ से आला ज़रफ़ रखेंगे ये कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देंगे उसको, ठीक है ना। हालांकि करना नहीं चाहिए, उसकी वजह जैसे भाई ने कहा ना कि कम अज़ कम हम भट्ट साहब का इतना यकीन जाने, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, मैंने देखा भी नहीं था, पहली दफ़ा मैं मिल रहा हूँ, बाफेस मिल रहा हूँ, नहीं देखा कभी ना। आप हज़रात से सिर्फ उसाब अब्बासी साहब और ज़हीर अब्बासी साहब से इस तरह मुलाकात हुई। बाकी ये लुक़मान हकीम ने अपने बच्चों को बुलाया और उनको एक एक तिनका दिया और उनको कहा इसको तोड़ो, उन्होंने ऐसे तोड़ दिया। अब उन सब को इकट्ठा करके फरमाया इसको तोड़ो, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, नहीं टूटा। फरमाया बेटा जब इकट्ठे रहोगे तो कोई माई का लाल तुम्हें जुदा नहीं करेगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ बयान में, आप किसी को एक उंगली से मारेंगे दर्द कम होगा, जब आप 2 उंगलियों से मारेंगे दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप पूरा पंजा इकट्ठा करेंगे तो उसके 32 के 32 दांत भी टूट सकते हैं। तो आप सबका इकट्ठा होना, ठीक है ना, और किसी की नुमाइंदगी में चलना, किसी को अपना बड़ा बनाना, ये आपको बहुत सारे मसाइल से यानी खुलासी दे सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हर किस्म के तकाजे, हर किस्म की आवाज़ जब आपकी लगेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा हर मैदान। साहब ने कार चौक से इनको हमने नायब सदर बनाया। चौधरी मुनीर साहब ने टेंच बाटा से उन्हें नायब सदर बनाया। वो चौधरी बरार साहब के कोई जो मतलब कि बरार साहब के कोई चचा साहब हैं वो जनाजे से होके आएंगे। टेंच बस हमने शहर के चारों तरफ से नुमाइंदगी दी है। शेख हसन साहब ने PWD से इन्हें नायब सदर बनाया। जमीर साहब को प्रेस सेक्रेटरी बनाया। मुस्लिम कादरी साहब को हमने खजांची बनाया। वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो आज आना चाहते थे, हमने उन्हें मना किया कि वो ना आए। इश्तियाक मीर साहब हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी पंडोड़े से हैं। आफोल अवैध साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। अदरीस साहब हैं, सरदार अदरीस साहब हैं, ये नायब सदर हैं। ये हमने नॉमिनेट किया है। अब जो भी तनकीद हो तो इन उम्मीदवार का काम है कि वो वहाँ पे उसका मुकाबला करें। तो अब हमने उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, कोई मैसेज नहीं करना। ये हमारी फतह है कि हमारे 100% बंदे हमारे साथ हैं। उसी बात वो परेशान है तो हम लड़ेंगे इंतजामिया के साथ। मैं तो लड़ने वाला बंदा हूँ, तो जो सफ़ीर साहब जानते हैं हम तो लड़ाई करते हैं, देखी जाएगी जो लड़ेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। अगर हम चापलूसी करेंगे तो हमें कोई हमारा हक नहीं देगा। जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब माशाल्लाह बुज़ुर्ग हस्ती हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो अभी शायद इस दुनिया में भी ना आए हों और वो इस फील्ड से रिलेटेड थे और इंतज़ामिया से या कारोबार से या जितने मसले मसाइल थे वो इसका मतलब बेहतरीन तजर्बा रखते थे। तो सफ़ेद रेट से ना अल्लाह भी हया करता है। अल्लाह कहता है कि सफ़ेद रेट से भी मतलब जिस चीज़ से अल्लाह हया करे। तो मेरे ख्याल में हम जो नौजवान तबका है तो ये हमारे लिए बायस शर्म है कि एक सफ़ेद रेश आदमी के ऊपर किस तरह के इतराज़ात। और दूसरी बात यह है कि जो इतराज़ात इन पे उठाए गए हैं वो सारे भाई यहाँ मौजूद हैं। एक टेबल पकड़ वो ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई इस किस्म का इतराज़ आए तो ये सारे भाई इस ध्यान में रखें कि इनको हमने अपना अमीर चुन लिया एक किस्म का सरप्रस्त है, अमीर है। तो फैसले की फाइनल अथॉरिटी जो मुख्तलिफ आरात आएंगी हर तरफ से और फाइनल फैसले की अथॉरिटी भट्ट साहब को हासिल है। फिर हम इख्तलाफ करते हुए भी ये हम सब पे लाजम है कि जो सदर साहब का जो अमीर साहब का फैसला होगा मीनू हम जो है वो हम सब तस्लीम करेंगे, ना कि उससे कीड़े निकालेंगे और उस पर बगावत करेंगे और गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। इससे फिर नुकसान अपना ही होगा।
دیکھیں فیصلہ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی صدر صاحب کی ہے, امیر صاحب کی ہے, اور خیر بھی اسی میں ہے کہ ہم ان کی مان کے چلیں گے. ہماری نہیں ہے نا ان کا تجربہ ہے. کیا خیال ہے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نیکسٹ ٹائم بھی اگر کوئی کال کرتے ہیں تو آپ سارے بندے اپنی اپنی رائے دیں, لیکن فائنل فیصلے کا اختیار جو ہے وہ صدر صاحب کو دیں, اور آپ اختلاف کرتے ہوئے بھی اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. بڑی لڑائی لڑنی ریٹ ایویں نہیں ملتے. پورے پنجاب میں سب تو زیادہ ریٹ ساڑھے پنڈی دے وہ پوجے تھوڑے کو کی چھڑی ہے. ساڑی پنجاب کی اجمل بنی سی, حافظ صاحب گئے سن میرے نال, تو چودھری منیر صاحب گئے سن. چیمبر فیصلہ آباد چیمبر نے اتنے بلایا رہا سی, پورے پنجاب میں دوگڑے بندے آ گئے سن, اور اتنے مہمان خصوصی نے خود بخود میرے رکھا ہے. میں انہوں نے کہا جی میں امیدوار نہیں ہوں, میں پورے پنجاب میں نہیں سماعت کرتا. انہوں نے میرے سرپرست بلایا اور اجازت دی کہ یونین تک جواب دے گی. تو آپ ایک پاسے میرے ملتان کا بندہ بیٹھا سی, وہ صدارت کا امیدوار سے, ایک پاسے میرے کھبے پاسے لاہور کا بندہ وہ امیدوار سے. انہوں نے میرے کہہ دیا یونین میرے جواب دے. بڑا بہت زیادہ شکریہ. میں جنرل سیکرٹری کے طور پہ نا بٹ صاحب نے تقریباً 30-35 سال ہو گئے تقریباً کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے خالی پنڈی بھی عزت نہیں دیتی بلکہ پورے پنجاب کی عزت دیتی ہے. بٹ صاحب نے لاہور بھی گئے ہیں, فیصلہ آباد بھی کئی دفعہ مطلب بہت اللہ نے عزت دیتی ہے. اور بٹ صاحب کی حمایت نال ہی جڑا نا چل رہا ہے پنجاب کا سسٹم بھی. حالانکہ وہ لاہور والا بڑا مضبوط گروپ سی, انہوں کی کوشش سی بٹ صاحب انہوں کی حمایت کرن تے وہ صدارت واسطے اگے آن. وہ اج تک تھوڑے بٹ صاحب نے خفا نے تھوڑے کہ لاہور کی جڑی ہے نا اہمیت بہت زیادہ ہے. بٹ صاحب کو آٹا کو پہلی دفعہ نہیں آیا ماشاء اللہ, کافی اچھے مطلب کام کر رہے ہیں الحمدللہ. چینی رہا بہت کدی پیسے پیچھے نہیں دوڑے الحمدللہ, اور جدوں بھی فائٹ کی ہے نا تاجراں واسطے ہی فائٹ کی ہے, اور کدی بھی چکے نہیں ہیں. یہ مطلب اہم گل ہے. بطور جنرل سیکرٹری میں بٹ صاحب نے کام کرتے اتنا عرصہ ہو گیا, اور میں بڑا محترف ہے انہوں کا, اور بہت یہ نہیں کہ سانوں ہیرا اللہ نے دیتا ہے کہ ہر جگہ کے اتنے نا تاجراں کی نمائندگی کرتے ہیں ہر موقع پہ. اور انتظامیہ ایس پی صاحب نے کیونکہ وہ اپنے بھی انہوں کی ویلیو ہے, تو بڑی حکمت عملی نال بٹ صاحب جو لے کے چلتے ہیں. بعد یہ خاموش بھی کرا دیں کہ بھی حکمت نال چلنا پے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سب کا بہت بہت شکریہ. 11 بجے تک کا فائنل کیا تھی بٹ صاحب نے کہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگا گے. افطاری کا ہے کوئی چلو جگہ ہے ساڑھے بالکل آئے ہیں بٹ صاحب کے نمائندگی جو ہے نا وہ مانی ہے, سب سے بات کی ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ میں ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے گروپ کی اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے, اس کو ہم کلوز کر دیں. آج کے بعد جتنے ہمارے فوکل پرسن بھائی بیٹھے ہیں چاہے وہ ہمارے متعلقہ ہیں یا نہیں ہیں, میں سب سے پہلے تو راجہ بابر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جناب قاری جمشید صاحب کا, حکیم صاحب کا, اور ہمارے فوکل پرسن جو رہے ہیں لالا جبور صاحب, اور اس طرح جو اور بھائی بھی تھے جو کہ ہمارے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. ایک دفعہ قاری صاحب کا مسئلہ بنا, انہوں نے مجھے کال کی, میں نے جا کے وہ مسئلہ ہمارے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے پھر ادائی کے قاضی سیف اللہ صاحب, تو الحمدللہ مجھے بھائی نیم بھی جانتے ہیں, میرے پڑوسی بھی ہیں. انہوں نے کہا ظہیر بھائی آپ ان کو سمجھائیں طریقے سے چلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ شکایت نہیں ہوگی. تو قاری صاحب کو جناب اچھے طریقے سے چلایا. تو باقی یہ ہے جی کہ گروپ جو بنایا ہے سب کو پتہ ہے کیا نہیں ہے. آج کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. شروع سے ساتھ علی چودھری منیر صاحب جو نائب صدر ہیں ہمارے, تو یہ شروع سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. فیصلہ آباد میں بھی جب تو جنازے پہ گئے. آخری میسج یہی ہے کہ ہم ایک ٹیم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جس طرح ہم چل رہے تھے اب بھی آگے چلیں گے. آپ کا تعاون کا بہت شکریہ. ہم نہیں کہتے کہ جس طرح وہ بدتمیزی کرتا ہے اس طرح کریں, ہم بدتمیزی کے بالکل قائل نہیں. انتظامیہ کے ساتھ اب جو کہیں چاپلوسی کریں تو وہ نہیں ہوتی. کام کر رہے ہیں انتظامیہ خوش ہے کہ کام دیتی ہے, لیکن جہاں ہماری جو ہمیں ہم کہیں گے اس بندے کو جرمانہ نہ کرو وہ کریں تو پھر ہم ان کے سامنے کھڑے ہو نہیں. جن کا جو جرمانے تھے انہوں نے میں نے اس کو فون کر کے بتا دیا یار میرے بندے آ رہے ہیں ذرا ان کا دھیان کرنا. اب یہ نہیں کہہ رہا بالکل نہ کرو, اس لیے ان کو شوکات ملے مجھے, اور میں گروپوں میں بتا بھی دیتا ان کو شوکات ملے ہوئے ہیں, ذرا آپ نے محتاط رہنا ہے. ان کو اے سی صدر بہت زیادہ جرمانے کا تھا 50,000. کل گیا پرسوں بیریا میں, اس نے صرف ریٹ لسٹ چیک کیا, جرمانہ نہیں کیا. میں نے احتجاج کیا, میں کہا بہت زیادہ جرمانے کرتا ہے. وہ ماٹوں کو کیے, کسی کرانے والوں کو نہیں کیے, لیکن میں نے ماٹ والے بھی میرے ساتھ ہیں. میں نے کہا یہ زیادتی ہے. ان کا فون آیا کہ جب آیا ہوا انڈے کی ریٹ لسٹ چیک کر رہا ہے, دوسری ریٹ لسٹ چیک کر رہا ہے, تو اس نے جرمانے نہیں کیے.
यही इज्जत होती है और क्या होता है। दोबारा बताइएगा सर। मैं चौधरी मोहम्मद मनीर फोकल पर्सन टैग बाटा, नायब सदर मरकजी एसोसिएशन टैग। प्राइसिस के हवाले से बात हो रही है। सबसे पहले दोस्तों को ये बता दूं कि ये आसान काम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान लेवल की बात है। लेकिन जो पिंडी में जो हमारे पास 5-6 बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, PNG है, इनके जो बड़े RSM हैं, ZSM हैं, उनको ग्रुप में ऐड किया हुआ है। उनका रिप्लाई भी हमें अभी आ रहा है। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक मीटिंग रखेंगे, उसमें उनको बिठाएंगे और आस्ता आस्ता व्हाट्सएप की रहनुमाई के साथ उनको आगे चलाएंगे। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। शुक्रगुजार हूँ। जितने मेरे फोकल पर्सन हैं उनकी हाज़िरी आज 100% हुई है। वो मेरे साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ उनका काम होगा मैं उनके साथ हाज़िर हूँ। इंतज़ामिया के साथ भी बात करेंगे। पर काफ़ी दूर से शहर के चारों तरफ से, कैंट से भी आए हुए हैं, सिटी से भी आए हुए हैं, कोई डोइक सदर से आया हुआ है, कोई गिरजा रोड से आया हुआ है। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर रात को हाज़िरी दी है और इंशाल्लाह इनके सारे मसाइल मिल के हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम इस माह रमज़ान की बाबरकत रहमत और बाबरकत महीने में अल्लाह हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह शरीर के शर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हम फिर या अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह बट साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में, हर चीज़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद नसीब फरमा। अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी।